Welcome dear students, this is Algebraic Identities dealing with the 9th class, chapter number 2, Polynomials. देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं. First is a plus b whole square. The first identity, आपने first, second, third and fourth identities 8th class में ही सीख ली थी. थोड़ा उनके बारे में भी इंट्रोडक्शन लेते हैं. a plus b whole square, it is a square plus b square plus 2ab, and a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. अभी होता क्यों है, why it is happening like that, so हम इसको proof कह सकते हैं. Proof of our first identity. Take your LHS, left hand side लेके जाइए, that is the left hand side. Yes, a plus b whole square. So क्या मैं इसको a plus b and a plus b लिख सकता हूँ? Yes, the power is 2 ना. Same base, a plus b and a plus b having both 1 power. Powers add हो जाएंगे तो आपका whole square आ जाएगा. Like we can say a into a is nothing but a square. तो a square को क्या लिख दिया मैंने? a into a, something like a plus b whole square को क्या लिख सकते हैं? a plus b and a plus b. Now multiply a binomial by a binomial. So a into a will be a square. और simply ऐसा नहीं करना चाहते हैं, so a को multiply करिए a plus b के साथ, and plus b will be multiplied by a plus b again. a into a square, a into b is ab. b into a बोलिए या a into b बोलिए, बात एक ही है, that is ab again, and b into b is b square. So what it comes? a square plus what is ab and ab? That is 2ab and b square. तो कहने का मतलब है हमारे पास कि हमारा a square, b square and 2ab all are positive when we have a plus b whole square. तो हमने LHS से स्टार्ट किया था and we had proved our RHS. तो कहीं पे भी अगर आपको होल स्क्वायर दे रखा है तो आप उसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, बट हम कितने स्टेप्स को मिस कर रहे हैं? 1 2 3, और हम डायरेक्टली अपना आंसर क्या लिख रहे हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है. When we have to multiply two binomials, same binomials, then we can use this identity. Like we have two binomials, 6x plus 7y square z whole square. इसको आप 1.1 बोल सकते हैं, ठीक है? Identity first and first question you can say. So देखिए 6x plus 7y square z whole square, that is a binomial having whole square. So हम इसको multiply तो कर ही सकते हैं. This binomial multiply by this binomial only will give you the answer. But if you have to use the identity, then आप इस फोर्थ स्टेप को डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरा a कौन है? 6x, b कौन है? 7y square z. तो हमारे पास a कौन है? 6x, और b कौन है? दैट इज 7y square z. सो a स्क्वायर होता है, तो ये आपका a रहा और ये आपका b रहा. तो a का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 6x आपका a है होल स्क्वायर, 6x का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा. यू हैव टू यूज द ब्रैकेट. प्लस 7y square z स्क्वायर, 7y square z स्क्वायर. ठीक लिखे हैं? नो, इट इज रॉन्ग. यहाँ पे 7y square z आपका b था, b का होल स्क्वायर होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द ब्रैकेट्स. प्लस है, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, प्लस सभी होंगे. होता है 2 इंटू a इंटू b. नाउ व्हाट इज योर a? इट वॉज योर 6x. a आपका कौन था? 6x इंटू b, इट इज 7y square z. Let's solve it. 6 का स्क्वायर कितना? That is 36. x square will be x square plus 7 square. 7 square will be 49. 7 times is 49. कभी कभी आप लोग क्या करते हैं? 7 into 2 कर लेते हैं, 14. That is totally wrong. 7 square will be 49. y square का स्क्वायर क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर बाहर जो पावर होती हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन पे आती हैं. तो y की पावर स्क्वायर 2 into 2, that is 4. एंड z का स्क्वायर हो जाएगा, z का भी स्क्वायर होगा. ओके, प्लस 2 6 12,
and 12 7s are 84 x y square z, and that is our answer. तो हम इन 3 steps से बच जाते हैं when we have to multiply a binomial with a binomial, means we have to whole square it. Identity first, example number second या sample question second you can say. okay, so मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है, that is a typical example. कुछ भी हो सकता है, हमें बस ये ध्यान में रखना है कि बाइनोमियल होना चाहिए और इट शुड बी हैविंग होल स्क्वायर. मतलब क्या है इसका? द बाइनोमियल इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द बाइनोमियल इटसेल्फ. सो लेट्स सॉल्व. दैट इज माय ए एंड दैट इज योर बी. ठीक है, यहाँ पे ए कौन है? 3 1.1 c 3 अपॉन एंड 4/9 d इज योर बी. तो पहले क्या होता है बच्चे? ए का स्क्वायर होता है. तो ए हमारे पास है 3 1.1 c होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया. बी कौन है? 4/9 d होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2 इंटू ए कौन है? दिस वन इज ए. 3/1.1 c इंटू व्हाट इज योर बी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. सॉल्व करिए. 3 का स्क्वायर विल बी 9. 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121. द स्क्वायर ऑफ 11 इज 121. एक डेसिमल प्लेस हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे. ठीक है, 11 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1. तो इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है, दूसरे वाले में भी 1 डेसिमल प्लेस होगा. तो दो डेसिमल प्लेसेस आते हैं. अगर नंबर पे 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे तो स्क्वायर पे 4 डेसिमल प्लेसेस आ जाते हैं. ध्यान से करिएगा. तो 9 का स्क्वायर हो गया, 1.1 का स्क्वायर हमने कर लिया. रिमेंबर, अगर नंबर पे 1 डेसिमल प्लेस हो रहा है तो उसके स्क्वायर पे 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे. सी का स्क्वायर भी होगा. 4 का स्क्वायर इज 16. 4 टाइम्स 16. 9 2 टाइम्स 18. रॉन्ग. 9 का स्क्वायर हो रहा है, 9 9 इज 81. डी स्क्वायर प्लस, यहां पे थोड़ा समझना है हमें. नंबर 3 है आपका न्यूमरेटर में, नंबर 9 है आपका डिनोमिनेटर में. तो 3 1 टाइम्स इज 3, 3 3 टाइम्स इज 9. तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे आपके. तो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करिएगा. सिंपलेस्ट फॉर्म में तो निकालना ही है हमें. 2 4 टाइम्स इज 8. 11 3 टाइम्स इज 33. एक डेसिमल प्लेस दिख रहा है तो एक ही आएगा. और c इंटू डी विल बी देयर एंड दैट इज द फाइनल आंसर. इजी. तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी देखी, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में सब प्लस आएंगे. हमने इसका प्रूफ देख लिया कैसे ये आता है, और हमने इसके 2 सैंपल प्रॉब्लम्स भी कर लिए हैं. देखते हैं अपना सेकंड आइडेंटिटी. प्रूफ ऑफ द सेकंड आइडेंटिटी, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सेम ही है, बस प्लस 2ab प्लस वाले में होगा और माइनस 2ab माइनस वाले में होगा. तो LHS क्या होता है हमारा सेकंड आइडेंटिटी का? दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर. इट मीन्स बाइनोमियल a माइनस बी इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. सी ना, तभी तो हम बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. माइनस बी हो रहा है, फिर आपका कितना है? माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. a इंटू ए इज a स्क्वायर, a इंटू बी इज ab. साइन चेक करिएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन हम चेंज करते हैं. तो b इंटू ए कितना हो जाएगा? बी ए बोलिए या ए बी बोलिए. हम बोलते क्या है एक्चुअली? ए बी. वाई? अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, बी बाद में आता है. माइनस साइन ए बी. माइनस माइनस विल बी प्लस. बी इंटू बी इज बी स्क्वायर. सो व्हाट इट कम्स? ए स्क्वायर माइनस ए बी. इट विल बिकम माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. बट एक ही बात है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab. थोड़ा याद करने में ये इजी है, ना कि ये फॉर्म इजी है. यू कैन लर्न इट इन दिस फॉर्म, इट विल बी इजियर फॉर यू. तो ये तो इसका प्रूफ हो गया. एक सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर. दैट इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी एंड सैंपल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. कुछ भी ले लेते हैं, लाइक 3a माइनस 2b होल स्क्वायर. सॉल्व करिए. a माइनस बी होल स्क्वायर. a हमारा 3a है
और b हमारा 2b है। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब आइडेंटिटी से है, इट इज़ ऑफ नेगेटिव स्क्वायर आइडेंटिटी। तो देखते हैं, a का स्क्वायर करिए प्लस b का स्क्वायर करिए, a b स्क्वायर हो गए। फिर आता है बच्चे माइनस वाली आइडेंटिटी में माइनस 2ab, 2 इंटू a इज अवर 3a एंड b इज अवर 2b। सो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इज 9, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर माइनस साइन, 2 2 is 4 and 4 3 is 12ab. That is the final answer. Okay, very easy आइडेंटिटीज। यहाँ पे हम खाली इनको रिवाइज कर रहे हैं। सेकेंड आइडेंटिटी सैम्पल प्रॉब्लम में फर्स्ट हो गया है, सेकेंड प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ वो आप खुद करेंगे, डू बाय योर सेल्फ, कर लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम, 13a स्क्वायर बी माइनस 17ab स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी इसमें, लगा दीजिएगा, खुद से करिएगा तभी सीख पाएंगे। इन थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिटीज स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है ना, तो इसको आप ध्यान से सीखेंगे तो नहीं होगा कन्फ्यूजन। बहुत इजी आइडेंटिटीज हैं, देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो रहा है माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, दैट इज नॉट योर सेकेंड आइडेंटिटी, होल स्क्वायर नहीं है ये। ए का अपना स्क्वायर है, बी का अपना स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन आएगा। अगर इतना आपने समझ लिया, दैट इज योर थर्ड आइडेंटिटी। देन ए का अपना स्क्वायर है, बी का अपना स्क्वायर है, बाइनोमियल हो रहे हैं, दोनों ही स्क्वायर हैं और बीच में नेगेटिव साइन है। इतना सीखिए, थर्ड आइडेंटिटी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज आवर थर्ड आइडेंटिटी। व्हाट इज दैट, a प्लस बी, a माइनस बी। एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। फोर्थ आइडेंटिटी इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, x प्लस a, x प्लस बी। जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे उतना ही आप बाइनोमियल्स को फट से मल्टीप्लाई करा पाएंगे। तो इसमें होता है बच्चे x का स्क्वायर, जो आपका कॉमन दिख रहा है, दैट इज x एंड x, दो ब्रैकेट्स हैं, बाइनोमियल एंड अ बाइनोमियल, अ बाइनोमियल बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ बाइनोमियल। सो फर्स्ट टर्म दोनों के सेम होने चाहिए, दैट इज x एंड x। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस साइन आता है, फिर हम a और b को ऐड करते हैं इन द ब्रैकेट। फर्स्ट एक्स स्क्वायर जो कॉमन है या जो सेम है आपका, उसका स्क्वायर करिए, फिर प्लस साइन, ब्रैकेट में a प्लस बी, साथ में x मल्टीप्लाई होता है जो कॉमन था, प्लस a इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कराइए। वेरी इजी आइडेंटिटीज, लेट्स सी देयर प्रूफ। थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे तो बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई है ये, तो हम यहाँ पे जाएंगे, दैट इज RHS पे जाएंगे और LHS लेके आएंगे। RHS क्या है हमारे पास, a प्लस बी एंड a माइनस बी, मल्टीप्लाई देम। a को मल्टीप्लाई कराने वाले हैं a माइनस बी के साथ, प्लस b को मल्टीप्लाई कराने वाले हैं a माइनस बी के साथ, दैट मीन्स a इंटू ए इज a स्क्वायर, a इंटू बी इज ab प्लस a इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। सी ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, आपके सेम टर्म्स हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटर कन्वर्टेबल है ये, अगर ये दिया है तो इसको लिखिए, अगर ये दिया है तो इसको लिखिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एक इसका सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी फर्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख दिए हैं आपके, सैम्पल प्रॉब्लम फॉर थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ हमने ये किया है, आप भी करने वाले हैं। थर्ड आइडेंटिटी का फर्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम इज गिवन टू यू। अब कोई क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने देखा ये x का स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया, तो एक बार प्लस करा देंगे, एक बार माइनस करा देंगे। अगर a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, माइनस साइन है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है। बट यहाँ पे ये a नहीं है, दैट इज 100x स्क्वायर, ठीक है। ये x का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे 100 है, तो इसको आप पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में, a स्क्वायर में। अब ये किसका स्क्वायर होगा,
दैट इज 10x होल स्क्वायर, यू हैव टू से, माइनस 121y स्क्वायर है तो आप इसको लिखेंगे 11y होल स्क्वायर, 100x स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं हो सकता, a कौन है यहाँ पे, 10x, दैट इज योर a, 10x स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं वो आपके a और b हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस विदाउट द स्क्वायर्स, दैट इज a square minus b square is a plus b, a minus b, a square minus b square is a plus b, a minus b, that means a plus b and a minus b, a plus b, a आपका ये था, b आपका ये था और a minus b, वेरी इजी पार्ट। फिर देखते हैं अपना सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम। 16/25x की पावर 4 हो रहा है, क्या ये स्क्वायर हो सकता है किसी का? यस हो सकता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आप लिखने वाले हैं 4/5 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 81 होता है बच्चे 9 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का, और ये आपका b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या हम इसमें आईडेंटिटी लगा सकते हैं? अभी तो नहीं लगा सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस आ रहा है, तो अगर ये माइनस होता तो हम आईडेंटिटी लगा पाते, प्लस वाले में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गांठ बांधिए इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे प्लस होता वी कांट यूज द आइडेंटिटी, देन थर्ड आइडेंटिटी का तो यूज़ नहीं कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस करिए, 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9/7 b, ओके नॉट स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में हमने a प्लस बी कर दिया है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, दैट इज 4/5 एक्स स्क्वायर माइनस 9/7 b, दैट्स इट, इट इज योर आंसर। तो फोर्थ आइडेंटिटी अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, x प्लस से x प्लस बी होता है, इसको लर्न करने का फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी, एडिशन होगा, फिर x आ रहा है, फिर a प्लस ए इंटू बी आएगा। सो इसका LHS को लेके चलते हैं प्रूफ करने के लिए, x प्लस ए एंड x प्लस बी, सो x इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए, सॉरी x प्लस बी, फिर आपका प्लस a दिख रहा है, अगेन मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू बी विल बी एक्स बी बोल सकते हैं, बट हम इसको बी एक्स बोलेंगे, क्यों? क्योंकि बी अल्फाबेटिकली पहले आता है x से, a इंटू एक्स विल बी ए एक्स प्लस a इंटू बी विल बी ए बी, एक्स स्क्वायर, बी एक्स और ए एक्स में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x कॉमन है, यस, हमने बी एक्स और एक्स बाहर पे लिख लिया है, पीछे लिख लिया है, आगे नहीं लिख रहे हैं, पीछे लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बचा क्या, b प्लस ए, यस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं a प्लस बी और ए बी, एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ योर फोर्थ आइडेंटिटी। इसके सैम्पल प्रॉब्लम्स जम के करने वाले हैं, देखते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी, फर्स्ट प्रॉब्लम, x प्लस 4 एंड x प्लस 9, कैसे पहचानेंगे कि आपकी फोर्थ आइडेंटिटी हो रही है? बिकॉज फर्स्ट टर्म मस्ट बी सेम, बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय अ बाइनोमियल, फर्स्ट टर्म मस्ट बी सेम, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे x है, ये आपका a है और ये आपका b है, कुछ भी हो सकता है a और b, बट कंडीशन फर्स्ट टर्म मस्ट बी सेम। तो क्या होता है, पहले हम जो सेम टर्म है उसका स्क्वायर लेते हैं, तो x का स्क्वायर ले लेंगे, फिर पहले x का स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, ब्रैकेट में a और b को ऐड करेंगे, 4 प्लस 9, और मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, जो आपका सेम टर्म था दैट इज x, फिर प्लस a इंटू बी, प्लस साइन लगाइए और a इंटू बी कर दीजिए, a आपका 4 है, b आपका 9 है, 4 इंटू 9, यस, ओके, एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा, 4 प्लस 9 विल बी 13 and 13 is being multiplied by x, 13x, 9 4 time is 36 and that is your answer। देखते हैं अपना सैम्पल प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, 2x प्लस 4 x माइनस 9, पहचानिए कि आपकी क्या फोर्थ आइडेंटिटी लग सकती है कि हमारा फर्स्ट टर्म सेम हो रहा है, यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पे x है, तो नो इट इज़ नॉट सेम, नहीं लगा सकते हैं। तो अगर ये क्या होता,
2x होता तो आप सॉल्व कर पाते, तो आप फिर बोलते 2x सेम टर्म है, फिर तो कुछ भी हो आपका, a और b कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, int सेम ही रहेगी। देखते हैं कैसे। पहला स्टेप, जो आपका सेम था दैट इज 2x, उसका स्क्वायर होगा दैट इज x का स्क्वायर। यहाँ पे x कौन है, 2x, प्लस a प्लस b होता है, a आपका 4 है, b आपका -9 है, तो 4 - 9 हो जाएगा। प्लस में माइनस का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, तो +4 एंड -9। यहाँ पे हमने क्या किया था, +4 +9, यहाँ पे जो साइन है वो उतरेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस मत कर दीजिएगा। साथ में कौन मल्टीप्लाई होता है, x, और x कौन है यहाँ पे, 2x है बच्चे, जो कॉमन था वो 2x है, तो x मल्टीप्लाई मत करिएगा, 2x मल्टीप्लाई होगा। प्लस अगेन अब क्या होता है, प्लस a इंटू बी, a कौन है 4 इंटू b कौन है -9, वेरी इजी, 2 स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर इज x स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 - 9, -5 आ रहा है ये, और प्लस माइनस विल बी माइनस, प्रेफरेंस नेगेटिव का ज़्यादा होता है, तो -5 हो गया। और साथ में कौन था, 2x था, अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 5 इंटू 2 इज 10, मैंने एक स्टेप कम किया है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, 10x, प्लस और माइनस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पे माइनस होता है, 9 4 इज 36 एंड दैट इज योर आंसर। समझिएगा दोनों ही पार्ट को, चाहे -ab हो चाहे +ab हो, int will remain same, that is x plus a x plus b। फोर्थ का ही आपका जो थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम रहेगा वो आपका होमवर्क हो जाएगा, xy -8 एंड xy -7। चलिए कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका, x² -3 x² +7, कुछ भी कर लिया है हमने, देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। देखिए xy, ठीक है, दीज आर सेम टर्म्स, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अगर 2 लग जाए, यहाँ पे 2 लग जाए तो भी सेम ही रहेगा। तो अब भी हमारा यही आपका फोर्थ आइडेंटिटी चल रहा है, तो यहाँ पे x कौन है, 2xy है, स्क्वायर हो जाएगा, जो कॉमन होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, a आपका -8 है, b आपका -7 है, और x मल्टीप्लाई होता है, x कौन है, 2xy, जो कॉमन होता है, जो सेम होता है, प्लस फिर क्या करते हैं हम, a इंटू बी, a कौन है हमारे पास -8, b कौन है -7, तो -8 इंटू -7, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। 2 स्क्वायर इज 4, x² y² होल स्क्वायर लगाइएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, -8 -7 विल बी -15, और -15 इंटू 2 इज 15, 2 टाइम्स इज 30 xy, क्लियर, -15 है ये, माइनस का साइन आएगा, और 15 2 टाइम्स इज 30, x इंटू वाई इज xy। मल्टीप्लीकेशन पे दो नेगेटिव साइन नहीं हो सकते, प्लस में आंसर आएगा, 8 7 इज 56, बस साइन का ध्यान रखना है, 2 स्टेप का आंसर है। देखते हैं इसको, फोर्थ पार्ट, ओके, x² y, ठीक है, सेम हो रहा है, तो x यही होगा हमारा, x² y इज योर x, स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन, a और b का एडिशन होता है, a आपका -3 है, b आपका +7 है, मल्टीप्लाई किससे होगा, x से, और x कौन है हमारे पास, x² y, प्लस a इंटू बी होता है, a आपका -3 है, b आपका 7 है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, x² का स्क्वायर हो रहा है, तो x की पावर 4 हो जाएगा, ध्यान से, y², आंसर पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, इट इज +4, यस, +4 आ रहा है, इंटू x² y, माइनस में आंसर आ रहा है 7 3 इज 21, दैट इज योर आंसर। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपको देने वाला हूं, वो आप खुद करेंगे। सो दीज आर योर सम सैम्पल प्रॉब्लम्स। मैंने फोर्थ के 4 सैम्पल प्रॉब्लम्स, हर एक टाइप के टिपिकल एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाए हैं पीछे। आपको 5 6 7 8 बेस्ड ऑन आइडेंटिटी फोर्थ खुद करना है। वेरी इजी, बस साइन का ध्यान रखिए, और इन सभी में क्या लगने वाली है, आपकी फोर्थ आइडेंटिटी लगने वाली है। देखते हैं अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी, वेरी इजी। आपका अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता
तो क्या आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सी भी है, ट्राइनोमियल हो रहा है, तो यहाँ पे सी का भी स्क्वायर कर देंगे। क्या बोले, अगर a प्लस बी बाइनोमियल का होल स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता, बट यहाँ पे ट्राइनोमियल है तो सी का भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर होता है बच्चे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो 2ab आता है, यस, बट यहाँ पे c भी है तो हमारा 2bc भी होगा और हमारा 2ca भी होता है, एंड दैट इज द कंप्लीट आइडेंटिटी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 इंटू ab, 2 इंटू bc, 2 इंटू ca। आई होप बहुत ही ईजी आइडेंटिटी है। प्रूफ तो कर ही सकते हैं इसको। ले जाइए अपना LHS लेफ्ट हैंड साइड, कितना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या करने वाले हैं, इसको आप 2 बार लिख देंगे। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स same expression is being multiplied by itself. So a multiplied by this trinomial, yes, bracket, a multiplied by a plus b plus c। फिर से जो प्लस b होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर जो आपका c होने वाला है वो भी मल्टीप्लाई होगा a प्लस b प्लस c से। a इंटू a इज a स्क्वायर, a इंटू b इज ab एंड a इंटू c इज ac। b इंटू a, b into a is ba or ab, you can say b into b is b square, b into c is bc, c into a is ca or simply ac, c into b is cb or bc, c into c is c square, a square, b square and c square। दिख रहे हैं आपको ये, that is a square, that is your b square, that is your c square, plus this is your AB and that is again your AB। कितने AB हो गए, 2 AB हो गए। AB plus AB is 2AB। BC ढूंढिए, BC and again BC, BC BC, कितने BC हैं, 2BC, that means 2BC। और ऐसे ही आपको AC मिलने वाला है और AC मिलने वाला है, that is 2AC, and that is the identity proved। फिफ्थ आइडेंटिटी इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए बी, 2 इंटू बी सी एंड 2 इंटू सी ए, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हमें करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम a हमारा है 4a का होल स्क्वायर होगा, प्लस b कौन है 2b का स्क्वायर, नेगेटिव भी है बच्चे, ध्यान से करेंगे इसको, प्लस c कौन है माइनस 3c और इसका भी स्क्वायर होगा। a का स्क्वायर कर दिए हैं, b का स्क्वायर कर दिए हैं और c का भी स्क्वायर कर दिए हैं। बीच में प्लस साइन ही लगाना है आपने, नेगेटिव नहीं लगाना है। फिर आता है प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a कौन है 4a, इंटू b कौन है माइनस 2b, प्लस 2 इंटू b इंटू c, मैं इसको नीचे कर ले रहा हूं, 2 इंटू बी कौन है माइनस 2b और c कौन है माइनस 3c, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, c कौन है माइनस 3c और a कौन है आपका 4a। सो देखिए ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, बिकॉज पावर आपकी इवन हो रही है तो माइनस साइन नहीं आ सकता, और कभी भी स्क्वायर्स में नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज b स्क्वायर, प्लस माइनस साइन तो नहीं आएगा बिकॉज पावर इवन होती है, स्क्वायर में नेगेटिव साइन नहीं भी आता है। 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए प्लस साइन तो था, प्लस 2ab था, लेकिन b आपका नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें माइनस साइन दिख रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, आंसर इज नेगेटिव। सो 4 2 times is 8, 8 2s are 16, a into b, प्लस तो था, दैट इज प्लस 2bc, बट b भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्सप्रेशन इज प्लस, या टर्म इज पॉजिटिव। 2 2s are 4 and 4 3s are 12, b into c is bc, ये b है, ठीक है, प्लस एंड 1 माइनस साइन इज देयर, तो माइनस में आंसर आएगा 2 3s are 6, 6 4s are
24. C into A is CA and that is the answer of this identity. So fifth का second sample is for you guys to self evaluate yourself कि आपने कितना सीखा, कितना समझा. अगर समझ गए हैं तो इसको सॉल्व कर जाएंगे. ऐसे ही फिफ्थ का थर्ड पार्ट इज अगेन फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन. अगर ऊपर के सीखे हैं तो इसको भी आप कर जाएंगे. तो अभी के लिए हम यहीं तक जा रहे हैं. हमने 5 INTs देख ली हैं. 4 तो आपने 8th क्लास में ही देख ली थी. अभी सिर्फ हमने एक एक्स्ट्रा INT देखी है. कुछ उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं. INTs को पहचानिए कि कहाँ पे कौन सी INTs लगनी है, अप्लाई होनी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू.